Good morning, church. So I'll stand for the worship. God is a good God. Let's praise Him, adore Him, and worship Him this morning. God, you are my God. It's so personal to us today. Will follow you all of our days, O Father, by your strength and by your wisdom and by your guidance, O Father. We just come and sing praises to your name because you lead us in every path, in every direction, O Lord. To your name.
us be still. Whatever the darkness comes, whatever the shadows comes on our path, your light will shine through. Of this we are sure, O Lord. Thank you, Jesus. We commit this time into your great and mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good morning, church. सुप्रभात कलिसिया। That was a really nice worship, बहुत अच्छी आराधना थी। and good to see everyone. अच्छा लग रहा है सबको देख के। So we want to welcome anyone visiting here for the first time. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है आए हैं पहली बार, So we तो have हम a स्वागत sister in करना our midst. चाहते हैं। So let's तालियों से स्वागत we want to करना welcome चाहते you हैं। and enjoy the service. हमारा जो आराधना है वहाँ पर एंजॉय करें। So good to see Hannah also here. I think she's हाँ. coming here first time. I think here. No. Okay. She has been here before. Yeah. So really, like the last week we saw पिछले हफ्ते हमने देखा so many things are happening. बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। The war in the Gulf, the war in the Middle East countries, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो वॉर हो रहा था prices are increasing, और जो बहुत सारी कमी घटिया जो है वो बढ़ रही है। especially the gas prices. जो गैस का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। But one thing we heard in the song लेकिन हमने जो गीत में जो सुना वो about our God, हमारा जो परमेश्वर है He is a faithful one. वो जो विश्वासी योग्यता परमेश्वर है, He is unchanging. वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। Everything will change. सब कुछ बदल सकता है। Even in our friends, relatives, हमारे जो मित्र है, हमारे रिश्तेदार जो है वो सब बदल सकते हैं। they also can go against us one day. वो लोग भी चले जाएंगे हमारे जीवन से एक दिन। They may leave us. हमको छोड़ के जा सकते हैं। But our God has promised us लेकिन हमारा परमेश्वर ने एक वायदा दिया है हमको, that He will never leave us nor forsake वो us. जो कभी भी हमें त्यागेगा नहीं। That's a beautiful promise from our God. वो बहुत एक अच्छा वायदा है परमेश्वर से। और So just few announcement. कुछ सूचनाएं, As we want to block these dates for our picnic. कुछ दिन जो है आपको याद रखना है The पिकनिक date का। is already confirmed 11th of April, which is Saturday. 11 अप्रैल शनिवार को ऑलरेडी डेट को कंफर्म किया है। So since it is Saturday, we want to make a payment as soon as possible. वो शनिवार है, इसके लिए हमको बहुत जल्द से जल्द को भुगतान करना है। Because we want to reserve the entire place for the picnic. वो जो पूरा जो रिसोर्ट है वो रिजर्व करना है, हमको So लेना that है, outsiders don't come over there. ताकि बाकी लोग वहाँ पे ना आए। We want all our church people to be there. हम ऐसा चाहते हैं कि कलीसिया के लोग ही वहीं पे रहे। So it will be on 11th of April, 11 Saturday. अप्रैल को याद रखे शनिवार को There will be a bus service from here. बस सर्विस रहेगा। And the charges will be for adults, it will be 13 and above 1,000 rupees. बड़े लोगों के लिए जो है 13 से जो ऊपर जो है उनको 1000 रुपये Sorry, है। from 10 and above. 10 से ऊपर, And below from 3 years to 10 years, 3 साल से लेकर 10 साल तक जो है it will be 500 rupees. 500 रुपीज़ रहेगा। So the payment can be made online to Naresh. आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं नरेश भाई को। But we request you to at least meet and give your names to Brother Gunwant, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका नाम जो है वो ब्रदर गुणवंत को दीजिए, because we want to finalize it as soon as possible. क्योंकि उनको वो जो चीज़ है वो फाइनल करना है जितना जल्दी हो सके। So please at least meet us after the service here. आप सर्विस होने के बाद आप मिल सकते हैं भाई को। So that's it for the announcement. सूचना इतना ही। So let's welcome Brother Gunwant for the offering. ब्रदर गुणवंत स्वागत करते हैं। चेक। सबको जय मसीह की। ओके, ये समय जो है ऑफरिंग का है, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता 51 और उसका 16 पंक्ति और 17 पंक्ति। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, न तो मैं देता,
होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो जैसे मैं सोच रहा था हम दान के बारे में, जब हम दान देते हैं, है ना, अच्छी बात है। जब हम परमेश्वर के भवन में जब भेंट लेके आते, दान लेके आते, है ना, दशवांश लेके आते, फेथ मिशन लेके आते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था दाऊद के बारे में, दाऊद, हाँ, हमें पता है कि ये भजन जो है दाऊद ने जब पाप किया उसके बाद में जो है ये भजन लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसमें सोच रहा था कि दाऊद बता रहा है कि यहाँ पर कि परमेश्वर, तू मेल बलि से या होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो है टूटे मन से जो है तू बहुत प्रसन्न होता है। तो जस्ट मैं सोच रहा था एक बात, जब हम दान देते तो हम कैसे देते हैं दान, है ना। तो परमेश्वर हमारे कार्य में जो है उतना प्रसन्न नहीं होता, हम जो है कितना देते उससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन गॉड जो है हमारे हृदय से प्रसन्न होता है ना। तो एक सच्ची बात ये होती है कि जब हमारा हाथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक हमारे मन से ना निकला हो, है ना। तो पहले दान देने से पहले हमारा हृदय, हमारा मन जो है तैयार होना चाहिए। हाँ, हमारा हृदय तैयार है, लेकिन हमारा मन भी जो है तैयार होना चाहिए, तभी हमारा हाथ बढ़ सकता है। नहीं तो वहाँ पे दो सवाल उठ सकते हैं, मुझे देना चाहिए इतना या नहीं देना चाहिए, है ना। और फिर सवाल ये भी आते हैं मन में कि मेरे घर का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और अभी अगर हम सोचने जाएंगे, फ़िलहाल के लिए अभी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं, अरे गैस नहीं है ना, बहुत सारे विचार आ सकते हैं। लेकिन गॉड जो है मन की तैयारी चाहता है ना, कि हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना क्या बोलते हैं, दिलचस्पी रखता है, कितना परमेश्वर के कार्य के लिए जो है तैयार है। तो सबसे पहले जो है जब हम दान देते हैं, परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो हमारा मन तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट मैं सोच रहा था दाऊद के बारे में, दाऊद जो है परमेश्वर के भवन में जाने से पहले, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले दाऊद जो है अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को जो है तैयार इस रीति से कर रहा है कि परमेश्वर, हाँ, भले मैं पाप में गिरा हूँ, मैं पाप कर चुका हूँ, लेकिन तुझे जो है मैं बलि भी देना चाहूँ, उससे तू प्रसन्न नहीं होगा, है ना। कितना भी बड़ा मैं तोहफा लेके आऊँ, हाँ, वो राजा है, उसके पास जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है परमेश्वर को देने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि उससे तू प्रसन्न नहीं होता। तो जो है दिल से प्रसन्न होता है, जो दिल से जो आवाज़ निकलती है, दिल से जो पुकार निकलते हैं, उससे प्रसन्न होता है। तो जिस मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि क्यों ना हम जो है हमारे मन से जो विचार उठने से पहले, क्यों ना हम वो मन, वो हृदय हम परमेश्वर को दें। जब हम अपना हृदय और मन परमेश्वर को देते हैं, है ना, तो उसमें से जो है जो भी हम देंगे परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न होता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो उत्पत्ति के जो पहला किताब है उसमें ही देख सकते हैं, दो भाई है, दोनों भाई के पास जो है भेंट तो है, एक के पास जो है होम बलि है और एक के पास जो है जो भी अन्न बलि है। लेकिन परमेश्वर किससे प्रसन्न हो रहा है? जिसका हृदय जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, जिसका मन जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। उसके मन में कुछ नहीं था, उसके मन में, उसके हृदय में कुछ नहीं था, सिंपल साधारण उसका मन था और परमेश्वर को बहुत पसंद आया। और जब उसने जो है होम बलि चढ़ाई, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। लेकिन भले उसने काम किया है, मेहनत किया है ना, खेत की उपज लेके गया है, लेकिन उसका मन तैयार नहीं था, उसके हृदय से जो है वो भेंट नहीं थी, इसलिए परमेश्वर वहाँ पर थोड़ा सा उससे जो है प्रसन्न नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, भले हम काम कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें हम परमेश्वर को अपना हृदय, अपना मन दे रहे? क्या हम उसमें परमेश्वर को महिमा दे रहे? भले हम दान दशवांश दे रहे, फेथ मिशन दे रहे, उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करते हैं और सोचते, कुछ समय लीजिए, सोचिए दान देने से पहले, है ना, दशवांश देने से पहले, फेथ मिशन देने से पहले, कि गॉड रियली में आपको आपकी महिमा के लिए ये हो रहा है ना। परमेश्वर को बोल सकते हैं और परमेश्वर जो है सहायता करेगा, हमारे हृदय से बात करेगा परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते गॉड, हाँ, सच में परमेश्वर आपकी कलीसिया है, परमेश्वर ये आपकी देह है और हर एक से आप प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हर एक की जो प्रभु ज़रूरत है प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आपने उपाय करके दिया है, जॉब चाहे प्रभु हर एक जगह पे हो सकता है प्रभु, कोई भी स्थान हो सकता है प्रभु, कोई भी जॉब हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जॉब, वो मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर आप हर एक की उपाय करने वाले परमेश्वर है। गॉड, इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आप जानते हो परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना
करते हैं इस समय प्रभु यहाँ पर जितने भी परिवार है कलीसिया में परमेश्वर, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, आप सभी से प्रेम करते हो गॉड, और हर एक को प्रभु आप उपाय करके देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए कलीसिया की विश्वास योग्यता के लिए जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपना हृदय अपना मन खोलते हैं प्रभु, अपने हाथों को खोलते हैं आपके भवन में लेके आने के लिए परमेश्वर, और उसमें प्रभु यीशु मसीह कोई दबाव नहीं, कोई प्रभु कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन प्रभु स्व इच्छा से देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आप इस कलीसिया को बढ़ाइए और उन हर एक हाथों को, उस हृदय को प्रभु यीशु मसीह आप बातचीत करें और प्रभु उन्हें आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। This morning we'll have a special prayer time. आज की सुबह जो है हम लोग एक खास प्रार्थना सभा रहेगा। So before we have a prayer time,
प्रार्थना का समय शुरू करने से पहले I want to share a few verses from the Bible. मैं आपके साथ बाइबल से कुछ पंक्तियों को बांटूंगा And also we on the screen while praying we'll have some points for what to pray. और जब हम प्रार्थना समय शुरू करेंगे तो हम कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पर डालेंगे जहाँ पर हम प्रार्थना के विषय में प्रार्थना कर Usually we सकते meet on Wednesday. हैं। हम ज़्यादा करके बुधवार के दिन प्रार्थना के लिए मिलते Every हैं। Wednesday we meet for prayer. हर बुधवार को हम प्रार्थना का समय के लिए मिलते हैं। We don't share anything हम कुछ यहाँ पर बांटते नहीं हैं during Wednesday. बुधवार के समय। We just pray. हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते हैं That is our midweek. और वो Actually, हमारा मध्य की सभा होती है। like just pray, praying for our nation, praying for our city, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे शहरों के लिए हम प्रार्थना करते praying हैं। for church. कलीसिया के लिए प्रार्थना करते Every हैं week, every Wednesday. हर हफ्ता, हर बुधवार को। And if you count it for 12 months, अगर- imagine like how many hours, I don't know how many hours. 12 महीनों के लिए अगर हम I know. गिनती करें तो हम पता नहीं कितना प्रार्थना के लिए मिलते हैं। So prayer is important. प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। Prayer we get to know who is God. प्रार्थना में हम परमेश्वर कौन है ये समझ पाते हैं। Yes, through Bible also we get to know who is God. हाँ, हम बाइबल के द्वारा समझते हैं परमेश्वर कौन है, But through prayer we get to know what is his action. पर प्रार्थना के द्वारा हम ये समझते कि उसकी क्रिया क्या है। We get to know his love. उसके प्रेम को हम समझ पाते We हैं, get to know his power. उसके सामर्थ को हम समझ पाते We हैं। get to know how much he can do for us. हम समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। Like child watching the father working on the machine. जैसे कि एक बच्चा जो है अपने पिता को वो मशीन पे काम करते हुए जब देखता है, Many of us can miss that. कई लोग हम जो है वो खो सकते हैं उस दृश्य को। When we don't pray, जब हम प्रार्थना नहीं करते we हैं, miss the hand of God, like how he's working. हम परमेश्वर के हाथ, कार्यरत हाथ को खो देते हैं देखने के When we से। were a child, जब हम बच्चे होते हैं we are excited to be with the father. Like how he's driving the car. My son always watches me. और जैसे कि एक बच्चा हमेशा चाहता है कि वो पिता को के साथ जाए जहाँ वो काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमेशा हमें पास्टर को देखते रहता है वो कैसे गाड़ी चला रहे हैं, Like how I'm changing the gear, किस तरह से मैं गियर बदल रहा हूँ वो देखते रहता how है। I'm turning the steering. मैं स्टेयरिंग कैसे बदलता हूँ He's वो देखता excited. है, वो उत्तेजित रहता He है, wants to do the same. उसे वो ही करना होता है जो मैं कर रहा होता हूँ। Of course, when we were small child, और वैसे ही जब हम भी बच्चे थे, we wanted to be with the father doing all those things. हम अपने पिता के साथ जाना पसंद करते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। That is what the prayer is. और यही चीज़ है प्रार्थना के विषय में भी, Like how much we are interested to know the father. कि हम कितनी दिलचस्पी रखते हैं पिता को जानने के It लिए। shows by our action. ये हमारे क्रिया से दिखाई देगा Like how much we are interested in prayer. कि हम कितना प्रार्थना में दिलचस्पी रखते हैं। Like when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, oh, we are interested in his hand. हम दिलचस्पी रखते हैं उसके हाथ के कार्यरत होने में। हम जब प्रार्थना करते We are हैं, interested in his heart. हम उसके हृदय में दिलचस्पी रखते We are हैं। like excited. Like we want to see God, how you are working. हम उसके हृदय को जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं परमेश्वर आप कैसे कार्य कर God, रहे हो, how much your miracle? How is your miracle? आपके अद्भुत how you are चमत्कार doing? कैसे है परमेश्वर, Like मुझे in देखने John हैं। chapter 10, यूहन्ना के 10वें अध्याय like में I हम like देखते this हैं, verse, the relationship between father and the son. यहाँ पे हम पिता और पुत्र के संबंध को देखते हैं। Chapter 10 verse 15, John chapter 10 verse 15. 10:15 में लिखा है, As the father knows me, जैसे पिता मुझे जानते हैं, even so I know the father. और उसी तरह से मैं भी पिता को जानता हूँ। Like Jesus is saying, I know my father. यीशु मसीह कह रहा है मैं मेरे पिता को As जानता my हूँ, father knows me. जैसे मेरे पिता मुझे जानते हैं। Like, if you go to John chapter 14 यूहन्ना 15 में जब हम जाते हैं and verse 7, और 7वीं पंक्ति में जाते Jesus हैं, is telling now people in Israel. और यहाँ पे इज़राइल से यीशु मसीह कह रहा है, John chapter 14 verse 7. यूहन्ना 14:7 में, If you had known me, अगर आप मुझे जानते थे you would have known my father. तो तुम मुझे मेरे पिता को भी जानोगे। Like see the relationship of knowing. और यहाँ पर संबंध देखिए, रिश्ता देखिए कि कैसे एक दूसरे को जान रहे हैं। Knowing is important. जानना बहुत The ज़रूरी है, connection. जुड़ना ज़रूरी है। Just not a knowledge. सिर्फ ज्ञान नहीं, People can have knowledge, लोगों के पास ज्ञान तो हो but सकता they है not know. पर उन्हें वो नहीं पता चलेगा। Many people have knowledge. कई लोगों के पास ज्ञान Knowledge होगा, of God, परमेश्वर का ज्ञान, theology. थियोलॉजी होगी, People have theology, but they will not pray. उनके पास थियोलॉजी होगी
होगी पर वो प्रार्थना नहीं कर People will पाएंगे। have a theology, but they will not share gospel. वो उनके पास थियोलॉजी तो होगी पर वो सुसमाचार नहीं बांटेंगे। And some people, even not knowing theology, still they'll do the same thing. और वो उन्हें थियोलॉजी भी नहीं होगी तो फिर भी वो वही कहेंगे शायद से। Knowing is important. जानना बहुत If you had जरूरी है। known me, you would have known my Father. अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी How जान many of पाते। you we know God? कितने हम में से है जो परमेश्वर को जानते हैं? Like in Acts chapter 9, प्रेरितों के काम 9 में have you know Paul? पौलुस को हम देखते हैं। I'm sure you know about Paul. मैं विश्वास करता हूँ आप पौलुस को जान रहे हैं। He was a church planter. वो कलीसिया स्थापन करने वाले थे। He has written 13 epistles. उन्होंने 13 पत्रिकाएं लिखी है। He has wrote a disciplined message to Corinthians. अनुशासन का संदेश जैसे उन्होंने कोरिन्थ के लोगों को If लिखा। you read 1 Corinthians chapter 3, chapter 5, पहला he's कोरिन्थ का correcting 3-4 में church. लिखा He's है। correcting church. He's bringing discipline in church. वो कलीसियाओं को निर्देश कर रहा है, वो अनुशासन लेके आ रहा है कलीसिया Chapter में। 3 is talking about unity. Chapter 5 is talking about the wrong relationship. और 3 जो है एकता के बारे में बात करता है, 5 जो है गलत संबंधों के बारे में बात कर रहा And then as you read about the Corinthian, है। और जब हम कोरिन्थियों के बारे में सुनते हैं, the same Paul was hammering church. और वही पौलुस जो है जैसे कि ताड़ना दे रहा है कलीसिया को। Hammering means he was a Saul actually. वो He सौल was था persecuting church. और वो जो है कलीसिया को पीड़ा दे रहा था। He was persecuting. वो पीड़ा दे रहा था The कलीसिया Paul who को। is writing epistles and disciplining the church, now he wants the church pure. और यहाँ पर जो पौलुस जो है जो शासन लेके आ रहा था, पर अब वो चाहता है कि वो कलीसिया He was शुद्ध रहे। sharing the mystery of the church वो कलीसिया के भेदों को सिखा रहा था। in Ephesians. एफिसियों की He किताब was में। talking about the body life in the Ephesians. और देह and जीवन के Corinthians. बारे में बता रहा था एफिशियंस और कोरिन्थ Like में। God is sharing the heart of the church to Paul. परमेश्वर जो है अपना हृदय पौलुस के द्वारा कलीसिया को बतला रहा था। Same Paul who was Saul was persecuting the church. और वही पौलुस जो पहले साउल था और जो कलीसिया के विरोध में खड़ा था, That time he was not knowing the mystery of the church. उस समय में वो कलीसिया के भेद को नहीं He was जानता not था। knowing the mystery. He was not knowing the discipline of the church. वो चर्च के अनुशासन को, कलीसिया के अनुशासन को नहीं He जानता was था। not knowing the spiritual gift of the church. वो वरदानों को नहीं जानता था कलीसिया में But हर now एक he के, was able to do that. पर वो अब कर रहा था। But in Acts chapter 9, प्रेरितों के काम अध्याय 9 if you में read chapter 9 and verse 4, 9 और 4 में जब हम देखते as he हैं, was persecuting the church, और जैसे वो कलीसिया को पीड़ा दे रहा था, Jesus is talking to him. परमेश्वर यीशु मसीह उससे बातें करते हैं, Jesus is talking to him. उससे बातें कर रहे हैं। As he is persecuting the church, वो जैसे विरोध में आ रहा है कलीसिया like के, उससे बातें it's करे hurting परमेश्वर। Jesus. वो परमेश्वर यीशु मसीह को चोट पहुंचा रहा Like है। he's saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? हे साउल साउल, तू क्यों मुझे सता रहा है? And he was blinded after that. और उसके बाद वो अंधा बन जाता In है। निष्कर्ष In short. छोटे से में बताने में, And verse 11, 11वीं पंक्ति, 10 and 11, he calls Ananias. और वो अननायास को बुलाता है And he says, here I am, Lord. और वो कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ। Verse 11 says, so the Lord said to him, तब परमेश्वर ने उससे कहा, arise and go to the street called Straight, और उठकर उस गली में जहाँ जो सीधी है, and inquire at the house of Judas, और यहूदा के घराने को पूछ, for one called Saul of Tarsus. और वहाँ पर एक शाऊल नामक तारशिश का व्यक्ति रहेगा, For behold, he is praying. क्योंकि देखना वो वहाँ प्रार्थना कर रहा Oh, है। Jesus is understanding now, oh Lord, now, like he's telling Ananias, now this, for behold, he is praying. और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे समझ रहा है और देख रहे हैं, और अननायास को कह रहे हैं कि देखो पौलुस वहाँ पे, साउल जो है वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। Because Saul is scholar actually in Hebrews and Greek. और यूनानी और यहूदी में वहाँ पे वो जो है वो जैसे स्कॉलर था, He was a Sanhedrin member of the synagogue. और वो प्रार्थना के जगह पर वो एक सेनेड्रिन का जो है He महान was था। scholar, he was rabbi, he was teacher. वो रबाई था, वो शिक्षा देने वाला था, वो टीचर था।
What he was doing all the time? वो हर समय क्या कर रहा था? Maybe he knew the prayer. वो शायद से जानता होगा प्रार्थना को। He was like kind of, he knew the knowledge उसके of पास Old सारा Testament. ज्ञान था पुराने He नियम knew all का। the knowledge of Old Testament. पुराने नियम का सारा ज्ञान था उसके पास। He has been trained under good rabbi. और वो अच्छे रब्बाई के नीचे पढ़ाई प्राप्त करता है। But all these years he was praying. पर ये सारे समय में वो प्रार्थना कर रहा था। But this time, पर इस समय after he had that what you say counter, like encounter with Jesus. जब उसका मिलना यीशु मसीह के साथ होता है, Now behold, he is praying. और देखो वो वहाँ प्रार्थना कर रहा है। See, now it's present tense, looks like present tense. यहाँ It's पे not talking about past tense. वर्तमान में क्या हो Jesus रहा is है? not talking about past tense, what he has done in synagogue, whether he is a Sanhedrin member, so religious person. He is not talking about that. वो भूतकाल में नहीं देख रहा है कि आराधनाओं में क्या किया था या फिर वो सैनेड्रिन था तो क्या क्या किया था, भूतकाल में नहीं Behold, जा he रहा is है। praying, continuous tense, like present continuous tense. Behold, he is praying. यहाँ पर वर्तमान काल में जो क्रिया जारी है उसके बारे में यीशु मसीह बतला रहे See the हैं। connection now. यहाँ पे जुड़ना देखो कैसा है। Now Paul actually is knowing his father. अब जो है पौलुस अपने पिता को इस समय में समझ रहा था। In churches, many people must be like having a religious prayer, but they are not connected with God. शायद से कलीसियाओं में लोग जो है रिलीजियस Whether मतलब our धार्मिक church, प्रार्थनाएं whether other करती है। church, any church. ये अपनी कलीसिया हो, दूसरी हो या कोई भी। I'm just talking under the frame of this Bible. मैं यहाँ पर बाइबल के आधारित में बातें कर रहा हूँ। Like we may have a religious background, हमारे पास धार्मिक बैकग्राउंड हो सकता है, praying background, प्रार्थना करने का बैकग्राउंड हो सकता like है, Saul. जैसे साउल का था। But then, पर फिर when he understood Jesus, पर जब उसे यीशु मसीह समझ when आए, he encountered Jesus, जब उनका मिलना यीशु मसीह oh, के साथ I'm हुआ, persecuting church. हाँ मैं कलीसिया को I'm पीड़ा दे disturbing रहा church. था, मैं उन्हें गड़बड़ी लेके आ रहा था, And I'm blinded now. अब मुझे अंधेपन Now में हूँ। Ananias, the body life member, like body member comes there. Church अननायास member. जो है जो He देह का comes हिस्सा there. है, With his help, now he's able to see. उसके If you- सहायता से वो if you- देख if पा you रहा है। read the further passages, he's able to see because the Ananias was called to this house. और हम आगे जब देखते हैं अननायास को वहाँ पर बुलाया गया उस घर में उसके लिए प्रार्थना करने के And लिए, he was able to see. और उसके बाद वो देखने लगता है। He put the hand on his eyes उसने उसके हाथों को उसके आंखों पर रखा था and he was able to see. और वो फिर देख पा रहा We था। need members who can do this. और हमें यहाँ पर देह की जरूरत है Sometimes जो ये कर सकते हैं। people cannot see. कई बार लोग देखते नहीं हैं। When we have a church, जब हमारे पास When we come कलीसिया to होती है, church, हम जब कलीसिया आते oh, we हैं can see तब हम देख पाते हैं, because God has to say something क्योंकि परमेश्वर को कुछ हमसे in the कहना होता church. है In the कलीसिया church, में। कलीसिया में individually we cannot see. अकेले रह के हम शायद से वो देख नहीं Paul पाएंगे। was like individually he was operating maybe in one house. पौलुस शायद से अपने अकेले या उस एक घर में कार्यरत हो रहा था, I like this thing, like Jesus knows the address. और यीशु Arise. मसीह को वो एड्रेस पता होता Go है, to the street called Straight और उस सड़क पे जाना जिसे सीधा कहते हैं, and inquire at the house of Judas और यहूदा के घर में जाना, for one called Saul of Tarsus. और साउल जो तारशीश For से है, behold, he is praying. और वहाँ पर देखो वो प्रार्थना कर रहा He है। knows the address. यीशु मसीह उस एड्रेस को जान रहा He था, knows the street, वो सड़क को जान which रहा is था called Straight. जिसे सीधा कहते He knows हैं, the house of Judas. उसे यहूदा का घर पता And in था, that house, और उस घर में behold, Paul, yes, Saul is praying. और उस घर में साउल है करके ये भी जान See the रहे थे। relationship now, connection in that house. और वहाँ पे Direct. संबंध को देखिए वो उसके Beyond साथ में, satellite. और यहाँ पे Beyond all सैटेलाइट those के परे है, equipments on in the space which we have. और वो जो भूमंडल में जो सैटेलाइट्स उससे भी परे है, Beyond those all the equipments. और सारे वो कार्यों से ऊपर है। Russian equipment, रशिया Japan की is whatever जो चीज़ें the हैं या NASA, NASA all की those चीज़ें things हैं, are hovering over the space. या फिर वो सारी चीज़ें जो भूमंडल में फिर घूम रही है, All the network which bring to our houses और जो भी नेटवर्क हमारे घरों में आता है is beyond that. उससे परे है ये सब। In this speck, in the galaxy of this whole Milky Galaxy, ये पूरे भूमंडल में जब से जो है
from the third heaven, तीसरे स्वर्ग से one straight house, एक straight घर, called straight, वहाँ पर the सड़क house जो of है Judas. यहूदा का Behold, घर, उसे देखना, someone is praying. कोई प्रार्थना कर रहा है। And there are people also, और ऐसे लोग भी if हैं, you had known me, अगर तुम मुझे जानते you would have known my father. तो तुम मेरे पिता को So जानते। there are two things. दो चीज़ें हैं। If we know Father, अगर I हम mean, we know Jesus, जब यीशु मसीह को हम and we know जानते each हैं, other. हम एक दूसरे को जानते We हैं, know each other. हम एक दूसरे को Now जानते Paul हैं। knows Ananias, Ananias knows Paul. पौलुस जो है अब अननायास को जानता था और अननायास जो है पौल को Because जानता Ananias था, had a bad remark of Paul. क्योंकि अननायास के पास वो गलत मतलब बुरी खबर थी पौलुस के बारे Ananias में। knew Paul, who was Saul. और अननायास को जो है पौल समझ गए थे, वो जो शाऊल था। But Jesus is making him understand, no, now he's praying. Go. और यीशु मसीह He's- वहाँ पे he's a अननायास को good man, he's my समझा man. रहे हैं Go. कि अब वो मेरा है, उसे तुम जाओ, उसे God can मिलो। open someone's eyes towards somebody else also. परमेश्वर शायद से उनकी आंखें, किसी और की आंखें दूसरों की तरफ खोल सकता है। And also about our calling, only God can open our eyes. और हमारी बुलाहट की आंखें भी परमेश्वर ही खोल सकता है। Do you want to be sleeping or do क्या you आप- want to be awake? क्या आपको सोते रहना है कि जागरूक रहना है? Some lazy people want to be sleeping. कई जो They want- आलसी है वो सोना चाहते हैं, they want to sleep, just they don't want to see. वो They don't want सोना to see. चाहते हैं, वो अपनी आंखों खोलना ही नहीं But Paul चाहते। is telling Ephesian church, पर एफिसियों की कलीसिया Ephesians से कह chapter रहा 1 है, verse 18, एफिसियों का 1:18 let में your कह रहा है eyes be enlightened. कि आपकी आंखें Your eyes ज्योतिर्मय need to होने be दो। enlightened. आपकी आंखें If eyes are ज्योतिर्मय होने दो। not, if your eyes are not enlightened, अगर आपकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं which होती can है, happen only because of prayer. और ये सिर्फ हो सकता है प्रार्थना के When द्वारा। your eyes are enlightened, you can see the power. जब आपकी आंखें ज्योतिर्मय होती है तब आप Power. सामर्थ्य को देख पाते You हैं, can see the power. आप उस सामर्थ्य को देख पाते हैं And beyond that. और उसके परे आप देखते हैं। So let's pray today. तो हम आज प्रार्थना Let's करेंगे, trust God परमेश्वर पर विश्वास for our own रखेंगे life first. हमारे अच्छे जीवन के Yes, of लिए। course, these are the prayer, but let's pray for ourselves first. और ये सारे प्रार्थना के पॉइंट्स तो है, पर हमारे Sometimes स्वयं we के लिए can pray प्रार्थना for करें। others and forget to pray that, wow, oh God, please open my eyes. और हम दूसरों के लिए I तो can be करते हैं, कई religious बार हमारे लिए की भी जरूरत होती in है। our prayer, we can be religious towards others, but oh God, please help me, Lord. कई बार Help me. हम जो है I need you. I don't see as you are seeing. कई बार हम धर्मी बनकर दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर हम स्वयं के लिए नहीं कर सकते। परमेश्वर से हम अपने स्वयं की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Whether we go to church regularly or whether we pray may sometimes regularly. और कई बार हम Show me, like I want to be encounter, like and I want that encounter. परमेश्वर मुझे आपसे Encounter with भेंट करना Jesus. है, आपसे मिलना है, उस तरह से प्रार्थना Just कीजिए। pray like that. आप उस तरह I से need that प्रार्थना कीजिए। encounter because sometimes we may do something which is against God. कई बार ऐसे हो सकता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। And when we have that encounter, जब हम वो मिलना हमारा होता है, then we understand, oh Saul, Saul, why are you persecuting me? तब हम Then समझ we पाते हैं। understand, no, we don't need to touch church. We don't need to touch anything which is against God. और तब हम समझते कि जो पवित्र है, परमेश्वर का है, कलीसिया जो है, उसे मुझे छूना नहीं है, जो प्रभु का है उसे हाथ नहीं लगाना है। God can open that परमेश्वर वो खोल सकता है आंखें, when we are having that encounter with Jesus. जब हमारी भेंट या When we are मुलाकात studying होती है, word, when we are studying word, when जब we हम are परमेश्वर का वचन को maybe पढ़ते on हैं, our knees and when we like just as you're walking, we are raising our hand in our hearts. और जब हम चल God, रहे just हैं, we प्रभु need की you. आराधना कर रहे हैं चलते हुए, You know, while sitting on their couch, maybe okay, I'm bored with those TV and those sports. I'm just want you, Lord Jesus. I need you, Jesus. अगर Encounter आप with सोफे पे Jesus. बैठे हैं तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं, You're प्रभु मुझे tired आपकी maybe जरूरत from है। all the work. I शायद से need आप काम से Jesus. थक चुके I हैं। need Jesus. मुझे यीशु की ज़रूरत है, Because I need my eyes to be opened. क्योंकि मुझे ज़रूरत है मेरी आंखें खोलने की। So let's pray तो tonight, प्रार्थना करते हैं। this morning. As we'll have a small group, maybe 4, 4, 5, 5 like this, 4, 4, 5, 5. 4 या 5 का आप And we ग्रुप can बना go through सकते these हैं। points. Is there on the screen? We'll put it up. Okay, by then we can have a small group and then we'll have on the screen.
in Ephesians chapter 5 एफिसों के 5वें अध्याय में and verse 14 says, 14वीं पंक्ति कहती है, therefore he says, awake you who sleep, इसलिए सोए हुए जाग जाओ, which is spiritually, मतलब आत्मिक वे वो कह रहा है, not physically, शारीरिक spiritually. दशा में नहीं। Sometimes we will may misunderstand between physical sleep. We want sleep, good sleep. यहाँ पर हम गड़बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर नींद की हमें ज़रूरत होती है शारीरिक Sad में, for those who sleep physically and also spiritually. पर Sad for दुख की those. बात यह है जो शरीर में भी सोते हैं और आत्मा में भी सोते हैं। But good for those who are awakened spiritually and sleeping still in physically. Good और for अच्छी those. बात ये होगी Advantage. कि आत्मा में हम जागृत Advantage. रहकर शरीर में अगर हम सोए Advantage. तो हमें वो अच्छी भाग होगा But हमारे therefore लिए। he says, awake you who sleep, arise from the dead, और इसलिए जो सोए हुए हैं वो उठ जाओ जो मुर्दों में से है, and Christ will give you light. और परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें ज्योति देगी। See, he gives the light. वो हमें ज्योति Arise. देते हैं, इसलिए जागो, Awake. उठ खो। Both are like action words. और यहाँ पर जो है क्रिया के Arise. शब्द है, Awake is a decision words. उठ जाओ और जागो। It's not something robotic words. यहाँ पर ये निर्णय लेने वाले शब्द God हैं, will यहाँ पे come and रोबोटिक wake नहीं me up. है, It कोई is आके not like मुझे that. उठाएगा, ऐसा नहीं है। God will say, come. No. परमेश्वर कहेगा You have आओ, to make decision to follow. हमें वो निर्णय लेना होगा उनके Arise. पीछे हो लेने के लिए। And awake. जागरूक हो जाओ और उठो, That's a decision. वो निर्णय होगा। So when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God wake me up, परमेश्वर मुझे which means जगाना, I'm making decision by faith. तो मैं वहाँ पे I'm going to निर्णय decide. आत्मिक में ले रहा हूँ, निर्णय ले Because रहा I हूँ, prayed. क्योंकि मैंने प्रार्थना की है उस विषय में। So hope this was good time for us, मैं आशा करता हूँ ये अच्छा समय था हमारे लिए। and continue to pray आप जारी रखिए प्रार्थना as you go करना, home, जब आप घर जाते हो and keep praying. निरंतर प्रार्थना में रहे। Keep continuously pray. आप निरंतर प्रार्थना में बने रहिए, Not on Sunday, सिर्फ not रविवार only on Sunday. नहीं, सिर्फ रविवार नहीं, Continuous. निरंतर। Pray when you have a break. और प्रार्थना कीजिए जब आपको कुछ क्षण Pray मिलते when हैं, you are empty. जब आप खाली होते हो तब प्रार्थना करो, Okay. Pray when you are tired also. जब थके हुए होते तब भी प्रार्थना करो, Pray when you are discouraged also. निराश होते तब भी प्रार्थना करना, Pray when you don't feel anybody loving you. और जब कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है ये भी समझते हो Pray. तब प्रार्थना करो, And you'll प्रार्थना करो। understand by prayer that God gives light. तब आप समझोगे प्रार्थना में कि परमेश्वर ज्योति We'll देता है। understand something which we don't understand now. हम वो चीज़ों को समझ पाते हैं जो अब नहीं समझ पाते थे। Like Ananias understood, Paul is changed. अननायास को समझ में आया कि पौलुस Paul जो is है changed. साउल जो है बदल चुका है। Earlier Ananias was saying, oh, he's very dangerous person. वो पहले कह रहा था वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। God changes परमेश्वर बदलता है our hearts, हमारे हृदय को, the understanding of each other. ये जो हमारे सोच है एक दूसरे के प्रति। Amen. So let's pray. Thank you, Amen. Lord, for this time. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, Help us to meditate on these words आपके वचनों पर मनन करने के लिए सहायता मदद करना, and continue to touch our hearts हमारे हृदय को छूना, and lead us through this week, Lord. हमारी अगुवाई करना इस सप्ताह You में। bless us, Lord, आप हमें आशीषित in करना our works हमारे कामों में, and wherever we put our hands. और जहाँ कहीं भी हम हमारे हाथ Let it रखें be for your glory. ये आपके सारी महिमा के लिए हो। If anybody is sick, अगर कोई यहाँ पे बीमार heal है them. चंगाई देना, And show your hand also, Father, as we move. और आपका हाथ जो कार्यरत है वो हमें दिखलाना जब हम यहाँ से हिले। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से Amen. मांगते हैं, Amen. आमीन।